مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کا منی آئی کیو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی پی ایس ایکس کے ایک بہت ہی دلچسپ انڈیکس DIV20 سے متعلق کچھ مواد ہے۔ بظاہر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں ایک محفوظ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے، یہ انڈیکس کام کیسے کرتا ہے، اور کیا یہ کسی کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا حصہ بن سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ موضوع میرا مطلب ہے آج کل کے حالات میں بہت اہم ہے، جہاں لوگ اپنی بچت کے لیے ایسے راستے تلاش کر رہے ہیں جہاں مستقل آمدنی بھی ہو اور خطرہ بھی کم ہو۔ DIV20 اسی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن جیسا کہ ہر مالیاتی پروڈکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی گہرائی میں بہت سی باریکیاں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے پھر ان باریکیوں پر ہی کھوجتے ہیں۔ DIV20 یعنی ڈیویڈنڈ 20 انڈیکس، مطلب پی ایس ایکس کی وہ 20 کمپنیاں جو سب سے زیادہ اور مستقل منافع دیتی ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت سیدھا لگتا ہے۔ تو کیا پی ایس ایکس بس یہ دیکھتا ہے کہ کون سب سے زیادہ کیش بانٹ رہا ہے اور ان کی ایک لسٹ بنا دیتا ہے؟ نہیں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور یہیں سے اس انڈیکس کی اصل خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔ پی ایس ایکس کا جو معیار ہے وہ بہت جامع ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے سب سے زیادہ منافع دیا، بلکہ کئی اور چیزیں بھی پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ، یعنی شیئر کی قیمت کے مقابلے میں منافع کی شرح۔ اچھا، تو یہ جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر۔ جی، لگتا تو یہی ہے، لیکن یہاں ایک باریکی ہے۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا الجھ گیا۔ اگر ایک کمپنی کی ڈیویڈنڈ ییلڈ 15% ہے اور دوسری کی 8%، تو ظاہر ہے 15% والی بہتر ہوئی نا۔ اس میں کیا باریکی ہو سکتی ہے؟ یہی بہت عام غلط فہمی ہے، جسے ییلڈ ٹریپ بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کمپنی کی ییلڈ 15% نظر آ رہی ہے، اس کا شیئر پچھلے کچھ مہینوں میں بہت زیادہ گر گیا ہو، جس کی وجہ سے ییلڈ مصنوعی طور پر بڑھ گئی ہے۔ اچھا۔ جی، اور یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کمپنی کسی مشکل میں ہے۔ اسی لیے پی ایس ایکس صرف ییلڈ نہیں دیکھتا، بلکہ منافع کی تاریخ بھی دیکھتا ہے۔ کیا کمپنی نے پچھلے کئی سالوں سے مسلسل منافع دیا ہے؟ ساتھ ہی مالی استحکام، مارکیٹ کیپٹلائزیشن یعنی کمپنی کا سائز، اور لیکویڈیٹی مطلب اس کے شیئرز کی خرید و فروخت میں آسانی، ان سب کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا فلٹر سسٹم ہے جو نہ صرف زیادہ منافع دینے والی بلکہ مستحکم اور قابل بھروسہ کمپنیوں کو چنتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کمپنیاں اپنا منافع شیئر ہولڈرز میں بانٹتی ہی کیوں ہیں؟ وہ سارا پیسہ واپس کاروبار میں لگا کر اسے مزید بڑا کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے بالکل صحیح دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہ ہمیں اس انڈیکس کے پیچھے کی معاشی منطق کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، اس انڈیکس کا ایک بڑا مقصد ملک میں ڈیویڈنڈ کلچر کو فروغ دینا ہے۔ جب کمپنیاں منافع بانٹتی ہیں تو یہ صرف سرمایہ کاروں کے لیے ہی نہیں، بلکہ پوری معیشت کے لیے ایک مثبت اشارہ ہے۔ یہ مارکیٹ میں اعتماد اور شفافیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کمپنیاں صرف کاغذی منافع نہیں دکھا رہی، بلکہ حقیقی کیش کما رہی ہیں۔ بالکل، اور یہ چیز غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی راغب کر سکتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ایک عام سرمایہ کار کے لیے اصل سوال تو یہ ہے کہ اس میں پیسہ لگانے سے اسے ملے گا کیا؟ ظاہر ہے ایک تو مستقل آمدنی ہے۔ جی، سب سے بڑا فائدہ ایک مستقل غیر فاعل آمدنی یعنی پیسیو انکم ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک کمپنی 8 روپے فی شیئر ڈیویڈنڈ دیتی ہے اور کسی کے پاس 1000 شیئرز ہیں، تو اسے سیدھا 8000 روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ اور یہ آمدنی سال میں کئی بار بھی آ سکتی ہے۔ جی، یہ سالانہ، شہ ماہی یا سہ ماہی بھی ہو سکتی ہے، جو مہنگائی کے دور میں گھریلو اخراجات چلانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ آمدنی کتنی قابل بھروسہ ہے؟ کیا یہ کسی سرکاری اسکیم کی طرح گارنٹی شدہ ہوتی ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی اگلے ہی سال منافع دینا بند کر دے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں سیدھا ڈیویڈنڈ ویز کے سب سے بڑے خطرے کی طرف لے جاتا ہے۔ منافع میں کٹوتی یعنی ڈیویڈنڈ کٹس، یہ آمدنی گارنٹی شدہ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ بحران کے وقت، جیسا کہ ہم نے کووڈ کے دوران دیکھا، اچھی سے اچھی کمپنیاں بھی اپنا منافع کم یا مکمل طور پر ختم کر سکتی ہیں تاکہ کیش کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یعنی یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف مستقل آمدنی کا امکان ہے تو دوسری طرف اس کے کٹ جانے کا خطرہ بھی ہے۔
लेकिन अगर इंफरादी कंपनी के बजाय 20 कंपनियों के इंडेक्स में सरमायाकारी की हो तो ये खतरा कम नहीं हो जाता? बिल्कुल, यही तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है। शायद एक या दो कंपनियां मुनाफा कम कर दें, लेकिन ये इम्कान बहुत कम है कि तमाम 20 कंपनियां एक साथ ऐसा करेंगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा कम खतरा है। ये कंपनियां ब्लू चिप कहलाती हैं, अपने शोबे की बड़ी और मुस्तहकम खिलाड़ी। इनके शेयर्स की कीमतों में वो शदीद उतार चढ़ाव नहीं होता जो हम अक्सर ग्रोथ स्टॉक्स में देखते हैं। सही। मुझे याद है 2020 में जब मार्केट क्रैश हुई तो मेरे कई दोस्त जो नए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थे रातों को सो नहीं पा रहे थे, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में एफएफसी या एचयूबीसी जैसी कंपनियां थीं वो निस्बतन पुरसुकून थे। क्योंकि उनकी आमदनी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं था। जी, अगरचे कम हुआ मगर टूटा नहीं। यहाँ एक और दिलचस्प बात महंगाई से तहफ़्फ़ुज़ की भी है। ये कंपनियां अक्सर वक्त के साथ साथ अपना मुनाफा भी बढ़ाती हैं। जी, और इसका मतलब है कि सरमायाकार की आमदनी भी बढ़ती है, जो महंगाई के असरात को कम करने में मदद देती है। और अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो तवील मुद्दती मुनाफा का पहलू भी बहुत अहम है। बिल्कुल, कई मुतालियात से ये बात सामने आई है कि तवील मुद्दत में डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स मजमूई तौर पर उन स्टॉक से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं जो डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि यहाँ टोटल रिटर्न का तसव्वुर लागू होता है। टोटल रिटर्न? इसको जरा आसान अल्फाज में समझाएं। इसका मतलब है कि आपका कुल मुनाफा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो शेयर की कीमत में इजाफा और दूसरा उस पर मिलने वाला डिविडेंड। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, उस पर साल में 8 रुपए डिविडेंड मिला और साल के आखिर में शेयर की कीमत 110 रुपए हो गई, तो कैपिटल गेन तो 10% हुआ। जी, लेकिन आपका टोटल रिटर्न 18 रुपए यानी 18% है। सही। ये फर्क तवील मुद्दत में बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, ये कंपाउंडिंग की ताकत है। ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हम अमली तौर पर देखते हैं तो कौन सी जानी पहचानी कंपनियां हैं जो इस क्लब का हिस्सा बनती हैं, ताकि सुनने वालों को अंदाजा हो कि हम किन की बात कर रहे हैं। अगरचे ये फहरिस्त हर साल अपडेट होती है, लेकिन कुछ शोबे और कंपनियां इसमें मुस्तकिल तौर पर नजर आती हैं। जैसे बैंक्स? जी, बैंकिंग सेक्टर से एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल, तेल और गैस के शोबे से ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ। और एनर्जी में एचयूबीसी होगा? बिल्कुल, हब पावर यानी एचयूबीसी का नाम अक्सर शामिल होता है। और खाद के शोबे से फौजी फर्टिलाइजर यानी एफएफसी और इंग्रो फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियां तो अपनी दहाइयों पर मुहित मुस्तकिल डिविडेंड की तारीख की वजह से इस फहरिस्त में जगह बनाती हैं। यानी ये वो नाम है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, जो मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इसको एक अमली मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि कोई 5 लाख रुपए इन कंपनियों में लगाता है और औसत डिविडेंड यील्ड 8% है, तो उसे सालाना 40,000 रुपए की आमदनी सिर्फ डिविडेंड से होगी। और अगर शेयर की कीमत भी बढ़े तो वो एक बोनस है। लेकिन क्या इस्तेहकाम और भरोसा का मतलब सुस्त रफ्तार ग्रोथ तो नहीं? क्या सरमायाकार यहाँ तेज मुनाफा कमाने का मौका खो रहा है? ये इस हिकमत अमली का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। जो कंपनियां अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड के तौर पर दे देती हैं, वो कम पैसा कारोबार में वापस लगाती हैं। इस वजह से उनकी ग्रोथ की रफ्तार उन कंपनियों के मुकाबले में सुस्त हो सकती है जो अपना सारा मुनाफा कारोबार को बढ़ाने में लगाती हैं। तो कछुए की चाल या खरगोश की दौड़? जी बिल्कुल, आपको फैसला करना होता है कि आपको कछुए की मुस्तकिल चाल चाहिए या खरगोश की तेज रफ्तार दौड़ जिसमें गिरने का खतरा भी ज्यादा है। और मेरे ख्याल में एक और खतरा है जिस पर कम बात होती है, और वो है शोबों पर इन्हिसार। बिल्कुल, आपने जिन कंपनियों का जिक्र किया वो ज्यादातर बैंकिंग, तवानाई और खाद के शोबों से हैं। अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें गिर जाएं या हुकूमत खाद के शोबे के लिए कोई मनफी पॉलिसी ले आए तो इस इंडेक्स पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। इसे सेक्टर कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं। चूंकि ये इंडेक्स चंद मखसूस शोबों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है, इसलिए इन शोबों की कारकर्दगी का बराह रास्त असर आपकी आमदनी पर पड़ता है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि एक मुतनव्वे पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी, फार्मा और कंज्यूमर गुड्स जैसे शोबे भी होने चाहिए ताकि ये खतरा कम हो सके। और हाँ, एक और हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, टैक्स। ओ हाँ, टैक्स।
जी, पाकिस्तान में डिविडेंड पर 15% टैक्स लागू होता है, जो आपकी कुल आमदनी को कम कर देता है। तो इन तमाम फवायद, खतरात और ट्रेड ऑफ्स को देखते हुए ये हिकमत अमली किस किस्म के सरमायाकार के लिए है और किसे इससे दूर रहना चाहिए? अगर हम KSE 100 इंडेक्स से इसका मुवाजना करें तो क्या तस्वीर बनती है? देखें, KSE 100 पूरी मार्केट का आईनादार है, जिसमें हर तरह की 100 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है और ये उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो ज्यादा खतरा लेकर मार्केट की मजमूई ग्रोथ से फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे ट्रेडर्स के लिए? जी, ट्रेडर्स के लिए। उसके बरक्स DIV 20 एक मखसूस हिकमत अमली है। ये उनके लिए है जो तवील मुद्दत के लिए सरमायाकारी करना चाहते हैं। यानी रिटायर्ड अफराद? रिटायर्ड अफराद या वो लोग जिन्हें अपने माहाना अखराजात के लिए एक इजाफी जरिया चाहिए और जो लोग ज्यादा खतरा मोल लेने से गुरेज करते हैं। और किन लोगों के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं? ये डे ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जो रोजाना कीमत के उतार चढ़ाव से पैसा बनाते हैं। और जो अगला बड़ा स्टॉक ढूंढ रहे हैं? उनके लिए भी नहीं, और न ही कलील मुद्दती स्टेबाजों के लिए। उन्हें इसमें वो तेजी नहीं मिलेगी जिसकी वो तलाश में होते हैं। ये एक सुस्त और मुस्तहकम हिकमत अमली है। ठीक है, अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये किसके लिए है, तो कुछ अमली हिकमत अमलियों पर भी बात कर लेते हैं। अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहे तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, पहला और सबसे अहम मशवरा है मुनाफे को दोबारा लगाना, यानी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यानी जो डिविडेंड मिले उसे खर्च ना करें? जी, उसे खर्च करने के बजाय उसी कंपनी के मजीद शेयर्स खरीद लें। ये कंपाउंडिंग का जादू है और वक्त के साथ साथ इससे आपकी सरमायाकारी हैरानकुन तौर पर तेजी से बढ़ती है। और दूसरा मशवरा? मार्केट गिरने पर खरीदें। जब खौफ की वजह से अच्छे स्टॉक्स की कीमतें गिरती हैं तो उनको खरीदने का बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि आपकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाती है। और जाहिर है डाइवर्सिफाई करना तो जरूरी है, यानी अपना सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में ना लगाएं, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, उन शेयर्स को कम से कम 5 साल या इससे ज्यादा के लिए रखें। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। बिल्कुल, बल्कि गेट रिच स्लो हिकमत अमली है। जी बिल्कुल। अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें तो DIV 20 उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्टॉक मार्केट के अंदर फिक्स डिपॉजिट और ग्रोथ जैसा एक इम्तिजाज चाहते हैं। ये मार्केट के रोजमर्रा के शोर से परेशान हुए बगैर एक पुरसकून सरमायाकारी का तरीका है। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि DIV 20 सिर्फ ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों की फहरिस्त नहीं, बल्कि ये एक फिल्टर शुदा इंडेक्स है जो इस्तेहकाम और भरोसे को तरजीह देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्तकिल आमदनी और कम खतरा है, लेकिन इसके साथ मुनाफा में कटौती, सुस्त ग्रोथ और चंद शोबों पर इन्हिसार जैसे खतरात भी जुड़े हैं। जी हाँ, और जाते जाते एक आखिरी सोच। जी, DIV 20 बिलाशुबा इस्तेहकाम फराहम करता है, लेकिन एक समझदार सरमायाकार के लिए असल चैलेंज ये सोचना है कि वो अपने पोर्टफोलियो में इस इस्तेहकाम और मार्केट के दीगर हिस्सों जैसे कि टेक्नोलॉजी या नए उभरते हुए ग्रोथ सेक्टर्स में मौजूद तेज रफ्तार ग्रोथ के दरमियान सही तवाजुन कैसे कायम कर सकता है। क्या ये एक को मुंतखब करने का मामला है या दोनों को मिलाकर एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जा सकती है जो हर मौसम में काम करे? ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.